Yes, sir. sir. Sorry, sir. सबको विजिबल है, स्लाइड विजिबल है सबको? Yes, sir. So actually Yes, sir. today we are going to discuss the practical number 6 तो हो गया है. 6 तक हो गया. Yes, sir. So 7 करते हैं, उसके बाद 8 9 तो छोटा ही है. So 7 यानी कि today we are going to discuss about the construction and working of the 4-stroke diesel engine. So we have already done the working and construction detail of the 4-stroke petrol engine. So that is also the 4-stroke petrol engine and this is the 4-stroke diesel engine. So strokes are remaining same. Strokes are remaining same. यानी कि number of stroke there will be 4 stroke in case of the 4-stroke diesel or petrol. But difference क्या है तुम्हारा? What is the difference here? यानी कि in this we use the fuel as the diesel. In case of the petrol engine we are using the fuel as the petrol. Second difference जो है तुम्हारा construction wise जो difference होता है, second difference we use the spark plug in case of the spark या petrol engine, but there is no spark plug is used in case of the diesel engine. In this we are not using any spark plug. We instead of spark plug we use the fuel injector. What will be used here? Fuel injector. Similarly यहाँ पे भी there are 4 stroke है. Stroke first होगा, second होगा, third होगा, fourth होगा. तो what is the meaning of the stroke? The stroke we have already know कि if the piston is moving from between two extreme position, so either अगर TDC और BDC की तरफ मूव करेगा तो वो स्ट्रोक हो गया. So for analysis or analysis purpose we assume that initially our piston is at the TDC पे हमारा, और TDC से BDC की तरफ मूव करेगा तो हमारा पहला स्ट्रोक होगा. उसके बाद BDC से TDC की तरफ मूव करेगा तो सेकंड स्ट्रोक होगा. Again when it will move from the TDC to BDC third stroke होगा, and again when it will be move from the BDC to TDC that is the stroke number 4 हो जाएगा. So ये तो बात सबको क्लियर है स्ट्रोक के बारे में और ये सब चीज़ जो अभी तक मैंने डिस्कस की है. Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं कि डीजल इंजन की वर्किंग होती कैसे और ये कैसे ये वर्क करता है. सो पहले जब सक्शन स्ट्रोक होगा कि ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक यानी फर्स्ट स्ट्रोक इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट स्ट्रोक, और इसको हम इनटेक स्ट्रोक भी कहते हैं, इंडक्शन स्ट्रोक भी कहते हैं. सो ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक पिस्टन विल मूव फ्रॉम द TDC टू BDC. यस या नो? Yes, sir. Yeah. TDC to BDC. हाँ, TDC से BDC तरह मूव करेगा एज इट इज शोन इन दिस डायग्राम आल्सो. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट स्ट्रोक इन केस ऑफ द यानी कि ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक फर्स्ट स्ट्रोक में when the piston just start from TDC to BDC, so what will happen? There is a pressure difference. Inlet wall. Pressure difference होगा यानी कि the pressure as the piston is moving from TDC to BDC, so volume is increasing inside the cylinder. Initially when the piston is at TDC, so हमारे पास clearance volume था, but now when the piston has started moving from TDC to BDC से जब piston ने हमारा move करना start कर दिया तो वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज हो गई. यस या नो बताइए, क्लियरेंस वॉल्यूम से बढ़ना शुरू हो गया वो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रेशर, यानी प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर बिकम्स लेस एज कंपेयर टू द प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द सिलेंडर. सो आउटसाइड द सिलेंडर वी हैव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर and inside the cylinder we have the less pressure as compared to the atmosphere, and this is known as the vacuum creation. So as the volume is increasing, there is an increase in the vacuumation, and due to the pressure difference, only in case of the diesel engine only air come inside during the suction stroke. यानी कि जब पिस्टन तुम्हारा TDC से BDC की तरफ मूव करेगा, so only the air comes inside the cylinder. ओनली एयर आएगी यहाँ पे, यानी डीजल मिक्स होके नहीं आता है. डीजल कब आएगा वो हम बताएंगे. सो इन केस ऑफ द पेट्रोल इंजन द मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल कम्स इनसाइड द सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, बट इन केस ऑफ द डीजल इंजन ओनली एयर जस्ट कम इनसाइड द सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक. यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? ये सिंपल है. Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंस क्या है कि इन केस ऑफ द डीजल इंजन ओनली डीजल इज यानी कि ओनली एयर इज कमिंग इनसाइड द सिलेंडर, ओनली एयर आ रही है,
देयर इज नो डीजल इज कमिंग इनसाइड द सिलेंडर ओनली, यानी कि अभी हमारा डीजल आया ही नहीं है। डीजल कब आएगा वो बाद में आएगा। तो डीजल आएगी ड्यूरिंग द फर्स्ट स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक में तुम्हारे ड्यूरिंग क्या तुम्हारा ये एयर आ जाएगी, एयर आएगा। उसके बाद ये हमारा स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा, यानी पिस्टन हमारा बीडीसी पे पहुंच जाएगा, तो हमारा फर्स्ट स्ट्रोक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। और जितना हमारा ये इनलेट वाल्व जो था हमारा, ये जब हमारा पिस्टन बीडीसी पे पहुंच जाएगा तो इनलेट वाल्व भी हमारा ये बंद हो जाएगा। ये से बताइए भाई। यस सर। अब उसके बाद पिस्टन हमारा तुम्हारा बीडीसी से टीडीसी की तरफ अगेन मूव करेगा। सो जब पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा तो इन दिस कंडीशन, यानी इन दिस सिनेरियो ड्यूरिंग द सेकंड स्ट्रोक व्हेन द पिस्टन इज एट जस्ट बीडीसी पे, हमारा बीडीसी से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट नहीं किया है। सो जब हमारा पिस्टन बीडीसी पे होता है तो दोनों वाल्व हमारे बंद रहते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व भी और हमारा इनलेट वाल्व भी। बोथ द वाल्व रिमेन इन द क्लोज कंडीशन, यानी कि कोई भी वाल्व हमारा ओपन नहीं होगा। सो जब पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा, द एयर विच इज कमिंग इनसाइड द ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, जो एयर हमारी सक्शन स्ट्रोक के ड्यूरेशन में आई थी, तो उसका वॉल्यूम कम होगा या नहीं होगा, ये बताइए। एयर का जो सिलेंडर के अंदर आई है, यस सर, कम होगा। बिकॉज एयर तुम्हारी दोनों वाल्व हमारे बंद है, इनलेट वाल्व भी बंद है, हमारा एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद है। जब दोनों वाल्व हमारे बंद है और एयर सिलेंडर के अंदर आ गई है, तो उसका तो कंप्रेशन होगा नहीं होगा, ये सिर्फ बताइए। यस सर। यस सर। सो नाउ वॉल्यूम, यानी कि जैसे जैसे पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा तो वॉल्यूम की वैल्यू कम होती रहेगी, यानी एयर ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है सिलेंडर के अंदर, उस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम की वैल्यू कम होती रहेगी। सो ये होता है तुम्हारा कि ये होता है कि इसका मतलब सिंपली ये है कि एयर क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ, जब किसी चीज का वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करती है नहीं करती है, पी इक्वल टू कांस्टेंट होता नहीं होता है, पी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट होता नहीं होता है ये। यस सर। तो जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा वैसे वैसे इसका प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ेगी। साइमल्टेनियसली हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, एयर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। सो ये अब कितना हम कंप्रेस कर सकते हैं इसको ड्यूरिंग द कंप्रेशन, यानी सेकंड स्ट्रोक में कितना कंप्रेस कर सकते हैं इसको हम, अप टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। एयर को कितना कंप्रेस कर सकते हैं भैया हम, क्लियर। यानी जितना वही उसका क्लियरेंस वॉल्यूम का मतलब सिंपली ये हो गया कि पिस्टन जो है तुम्हारा जब टीडीसी पे पहुंच जाएगा, तो पिस्टन के टीडीसी पे पहुंचने के बाद जो अनऑक्यूपाइड स्पेस रहता है बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर हेड, दैट इज नोन एज द क्लियरेंस वॉल्यूम। वो हम सब लोग जानते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है। यस या नो? यस सर, जानते सर, खाली जो बचता है सर। हाँ, तो अब हमारा जब यानी कि ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक, यानी कि ड्यूरिंग द सेकंड स्ट्रोक, हम जो एयर सिलेंडर के अंदर आई है उसको कितना कंप्रेस कर सकते हैं, मैक्सिमम उसको क्लियरेंस वॉल्यूम के तक हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। यस या नो बताइए। यस सर। अब ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक व्हाट इज हैपनिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द एयर इज इंक्रीजिंग एंड द टेम्परेचर एंड एयर इज इंक्रीजिंग सो मच हाई कि एयर का टेम्परेचर और प्रेशर इतना इंक्रीज कर जाता है कि इट विल रीच इट्स अप टू क्रिटिकल वैल्यू, वो अपनी क्रिटिकल वैल्यू पे पहुंच जाती है, यानी कि क्रिटिकल पैरामीटर वैल्यू पे पहुंच जाती है। क्रिटिकल पैरामीटर का मतलब ये हो गया कि एयर अपने ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाती है। एयर विल रीच इट्स ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, और इसको हम कहते हैं तुम्हारा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। क्या होता है अभी तुम्हारा ये सेल्फ इग्निशन या ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होता है। सो पिस्टन जब हमारी टीडीसी पे पहुंचती है, सो एयर इतनी ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है, उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर जाता है कि एयर अपने ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाती है। नाउ व्हेन द पिस्टन इज रीच ना टीडीसी पे जब पिस्टन हमारी पहुंच जाएगी तो सेकंड स्ट्रोक हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, सेकंड स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई नहीं आई यहाँ तक बताइए सबको। अब एयर हमारी कंप्रेस हो गई है एंड इट इज इन द क्रिटिकल स्टेट, वो एक क्रिटिकल स्टेट में है। सो एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक के बाद होता है तुम्हारा कंबशन। अभी थर्ड स्ट्रोक स्टार्ट नहीं होता, हमारा क्या होता है, कंबशन होता है। सो कंबशन में होता क्या, व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द कंबशन। सो व्हेन द पिस्टन इज जस्ट रीड एज द टीडीसी पे जब पहुंचती है वो सेकंड स्ट्रोक में, तो फ्रॉम द फ्यूल इंजेक्टर, ये जो फ्यूल इंजेक्टर लगा है, जैसे कि तुम्हारा इस परफ्यूम, हमारा परफ्यूम हम जो है डिओड्रेंट या परफ्यूम हम जो है निकालते हैं
वो जो हमारा परफ्यूम की बोतल होती है, तो उससे वो तुम्हारा स्प्रे की फॉर्म में निकलता है नहीं निकलता है? यस सर। स्प्रे का मतलब ये होता है ऑटोमाइज फॉर्म में निकलता है, बहुत बारीक, यानी कि दैट इज द माइक्रो ड्रॉपलेट्स होती है, बहुत स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में वो क्या होता है तुम्हारा फ्यूम्स की फॉर्म में बाहर निकलता है डिओड्रेंट बोतल से। सिमिलरली हमारा फ्यूल इंजेक्टर भी एक नोजल है, फ्यूल इंजेक्टर क्या इसमें भी एक नोजल लगा रहता है। तो ये क्या करेगी, ये भी क्या करेगी, इससे क्या होगा तुम्हारा, अभी तक डीजल नहीं आया था, पहले और सेकंड स्ट्रोक में, यानी पहले स्ट्रोक में हमारा एयर आई थी, सेकंड स्ट्रोक में एयर कंप्रेस हुई है, अब कंप्रेस करके वो क्रिटिकल स्टेट में है। सो उस क्रिटिकल स्टेट में हम क्या करते हैं, डीजल को फ्यूल इंजेक्टर से स्प्रे कराते हैं। क्या कराते हैं भाई हम, फ्यूल इंजेक्टर से उस एयर में डिस्चार्ज कराते हैं, डिस्चार्ज कराते हैं, यानी स्प्रे कराते हैं। So when the diesel will enter inside in the critically air, any air which is at very high temperature and pressure, so जो डीजल उसके अंदर एंटर करता है तो वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है तुम्हारा। और इवेपोरेशन होने से एयर ऑलरेडी बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे थी, इवेपोरेशन होने से डीजल का उसमें क्या हो जाता है, एयर और डीजल में आग लग जाती है, बर्निंग शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं हम कंबशन, दिस इज नोन एज द कंबशन। कोई स्पार्क प्लग यूज नहीं कर रहे, विदाउट यूजिंग एनी स्पार्क प्लग, एज द डीजल कम्स जस्ट इनसाइड द एयर विच इज एट ऑटो इग्निशन और सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे है। जैसे उसमें फ्यूल डीजल एंटर करता है स्प्रे की फॉर्म में, ऑटोमाइज फॉर्म में, उस डीजल का क्या हो जाता है, इवोपरेशन होता है, और इवोपरेशन होने से क्या हो जाता है तुम्हारे एयर के साथ वो मिक्स करके बर्निंग शुरू हो जाती है, फायरिंग शुरू हो जाती है, आग लग जाती है डीजल में। बात समझ में आई नहीं आई, डीजल में कैसे आग लगती है, कैसे कंबशन हो रहा है? यस यस। सो नाउ द कंबशन विल स्टार्ट। कंबशन का मतलब ये हो गया कि फ्यूल हमारा बर्न होना शुरू हो गया है एयर में। सो जब एयर में फ्यूल बर्न होगा, सो बाय द बर्निंग ऑफ द फ्यूल यानी डीजल इन द एयर, हमारी हीट एनर्जी रिलीज होगी। यस या नो, हीट एनर्जी रिलीज होगी नहीं होगी? यस सर। दैट हीट एनर्जी विल अप्लाई द फोर्स ऑन द पिस्टन। पिस्टन हमारा टीडीसी पे है, तो जब हमारा कंबशन, जब हमारा यानी कि ड्यूरिंग द कंबशन जो हॉट हीट एनर्जी निकली, दैट हीट एनर्जी विल अप्लाई द फोर्स ऑन द पिस्टन। पिस्टन में फोर्स अप्लाई करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी नहीं करेगी? यस या नो? यस सर करेगी। So when that heat will apply the pressure or force on the piston, so piston will start move from TDC to BDC पे move करेगी नहीं करेगी? yes या no बताइए? Yes sir। This is known as our third stroke होता हमारा, और इसको हम पावर स्ट्रोक या वर्किंग स्ट्रोक भी कहते हैं। एंड ड्यूरिंग द पिस्टन तुम्हारा क्या करता है, TDC से BDC की तरफ मूव करेगा नहीं करेगा? yes या no बताइए? Yes sir। यानी कि by burning of the fuel या by the combustion of the diesel in the air, hot gases यानी कि तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा heat energy will release and that heat energy will apply the force on the piston and piston will move from TDC to BDC and our third stroke will complete। ये होता है तुम्हारा थर्ड स्ट्रोक। सबको समझ में आया नहीं आया थर्ड स्ट्रोक क्या होता है? यस सर। अब जब हमारा पिस्टन BDC पे पहुंचने ही वाला होता है, अभी पहुंचा नहीं है, यानी कि हमारा पिस्टन TDC पे TDC से BDC की तरफ को पहुंच रहा था थर्ड स्ट्रोक में, बट अभी BDC के जस्ट मतलब BDC पे बस पहुंचने वाला है, बस कुछ मतलब कुछ दूरी पे, जरा सारी मतलब बहुत थोड़ा सा टाइम है। तो हमारा एक प्रोसेस होता है तुम्हारा, उस प्रोसेस को कहते हैं हम एग्जॉस्ट ब्लो डाउन। ये सुन लो, अभी हमारा फोर्थ स्ट्रोक स्टार्ट नहीं हुआ है, थर्ड स्ट्रोक हमारा मतलब अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, एंड होने वाला हमारा थर्ड स्ट्रोक हमारा एंड होने वाला है, यानी पावर स्ट्रोक कंप्लीट होने वाला है एट द एंड ऑफ द हमारा थर्ड स्ट्रोक। इससे पहले हमारा एक प्रोसेस होता है एग्जॉस्ट ब्लो डाउन। वो क्या होता है वो समझ लो तुम लोग क्या होता है। सो जो हमारा पिस्टन अभी BDC पे हमारा पहुंचा नहीं होता है, पिस्टन पहुंचने वाला होता है, सो हमारे जो कंबशन गैसेस है वो तो जल गई है भाई, वो तो जल गई है, जल गई है, बताइए? यस सर। सो जो यानी डीजल जो है तुम्हारा जो एयर के साथ जल गया है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द, वो क्या तुम्हारा उसका प्रेशर कंपैरेटिवली जो है हायर है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस या नो? यस सर। भाई जो गैसेस हमारी जो बर्न हुई है, यानी कि जब पिस्टन हमारा TDC से BDC की तरफ मूव कर रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हुई है, गैसेस से तो हीट एनर्जी रिलीज हुई है, सो वो उनका टेम्परेचर अभी क्या है तुम्हारा, और इट इज हायर एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
यानी जो गैसेस हमारी इसके अंदर जो धुआं बना है, जो धुआं बना पिस्टन हमारा बीडीसी पे पहुंचने वाला, तो वो जो गैसेस है हॉट गैसेस, उनका टेम्परेचर और प्रेशर अभी भी तुम्हारा कुछ ना कुछ तो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो ज्यादा है अभी। क्या तुम्हारा वही हुआ? यानी द स्मोक विच इज इनसाइड द सिलेंडर, उसका प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है तो अभी क्या होता है, हमारा पिस्टन हमारा बीडीसी पे पहुंचा ही होता है, जस्ट उसके पहुंचने से पहले हमारा एग्जॉस्ट वाल्व, यानी ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, बिकॉज जो इनसाइड द सिलेंडर जो गैसेस है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, और जो बाहर हमारा प्रेशर है एग्जॉस्ट वाल्व के, वो हमारा कैसा प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, बिकॉज द अभी हमारी गैस बर्न हुई है, जली है, उनका प्रेशर जो टेम्परेचर ज्यादा है, सो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, अगेन ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस हमारा एग्जॉस्ट वाल्व हमारा क्या हो जाता है तुम्हारा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओपन हो जाएगा। अभी हमारा पिस्टन बीडीसी पे पहुंचा है, बस जस्ट पहुंच गया अभी हमारा पिस्टन, उससे पहले हमारा एग्जॉस्ट वाल्व हमारा ओपन हो गया है। सो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन से हमारा कुछ गैसेस हमारा एकदम से बाहर भागेंगी, नहीं भागेंगी एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू, ये सर बताइए। यस सर। यस सर। जैसे हमारा पिस्टन बीडीसी पे पहुंचा, पहले सुन लो, पिस्टन के बीडीसी पे पहुंचने से पहले ही क्या हो जाता है, हमारा एग्जॉस्ट ब्लो डाउन हो रहा है। एग्जॉस्ट ब्लो डाउन का मतलब ये है कि बिफोर द पिस्टन रीचिंग द बीडीसी, उसके अंदर जो गैसेस है, सिलेंडर के अंदर जो बर्न गैसेस है, यानी जो जल चुकी गैसेस है, जो धुआं है, उसका प्रेशर क्या है तुम्हारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। अब पिस्टन हमारा बीडीसी पे पहुंचने वाला है, सो पिस्टन के बीडीसी पे, जैसे पिस्टन बीडीसी पे पहुंचता है, मतलब अभी हमारा पिस्टन बीडीसी पे जा रहा, पहुंचने वाला है, उससे पहले हमारा एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाता है, हमारा ओपन हो जाता है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, बिकॉज इनसाइड द सिलेंडर हमारा प्रेशर ज्यादा है और एग्जॉस्ट वाल्व के हमारा कैसा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो ड्यू टू दैट प्रेशर डिफरेंस हमारा एग्जॉस्ट वाल्व हमारा जैसे पिस्टन बीडीसी पे पहुंचता है ओपन हो जाता है, और उसके अंदर से हमारे अंदर जो हाई प्रेशर गैसेस थी, जो द गैसेस विच हैज वेरी हाई प्रेशर, वो तुम्हारी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगी थ्रू द एग्जॉस्ट वाल्व। ये सुनो बताइए सब लोग। यस सर। एंड दिस इज नोन एज द एग्जॉस्ट ब्लो डाउन, इसको कहते हैं हम एग्जॉस्ट ब्लो डाउन। अब इसके बाद जब एग्जॉस्ट ब्लो डाउन हो जाएगा, तब हमारा फोर्थ स्ट्रोक स्टार्ट होता है, जब हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। अभी तो मैंने बताया कि ये दिस एग्जॉस्ट ब्लो डाउन इज हैपनिंग व्हेन आवर पिस्टन इज जस्ट बीडीसी पे हमारा, यानी थर्ड स्ट्रोक के बाद हमारा जब पिस्टन बीडीसी पे पहुंचने वाला है, तब हमारा एग्जॉस्ट ब्लो डाउन हो गया है। अब जब पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, तो हमारा फोर्थ स्ट्रोक स्टार्ट होगा। बात समझ में आई नहीं आई सबको, ये बताइए। ये सब क्लियर है? यस सर। टाइम होना चाह रहे हैं सर कुछ स्टूडेंट्स। ये जो टाइम स्पैन होता है, यानी कि ये जो तुम्हारा जब एग्जॉस्ट ब्लो डाउन और कंबशन जो हो रहा है, कंबशन जो हमारा कंबशन कब हो रहा है, कंबशन ऑफ द फ्यूल इज टेकिंग प्लेस व्हेन आवर पिस्टन इज टीडीसी। इसका एक फाइनाइट टाइम होता है, बहुत शॉर्ट टाइम होता है, बट वो एक फाइनाइट टाइम होता है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 1 सेकंड में हो रहा है, या मैं कह रहा हूँ कि 10 माइक्रो सेकंड में हो रहा है, तो 10 माइक्रो सेकंड इज अ फाइनाइट टाइम। यस या नो? यस सर। मतलब एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है, बट उस शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि आई एम सेइंग कि कंबशन इज टेकिंग प्लेस इन जस्ट 10 माइक्रो सेकंड, यानी कि हमारा जो कंबशन है वो 10 मिली सेकंड या 10 माइक्रो सेकंड में हमारा पूरा हो जा रहा है। वो एक टाइम ड्यूरेशन है, एक फाइनाइट टाइम है, 10 माइक्रो सेकंड के टाइम में हमारा कंबशन होगा, बट वो हमारा बहुत छोटा टाइम है तो फाइनाइट बट बहुत छोटा टाइम है। ये सीनो बताइए। यस सर। सिमिलरली जब एग्जॉस्ट ब्लो डाउन हो रहा है, एग्जॉस्ट ब्लो डाउन इज हैपनिंग व्हेन आवर पिस्टन इज बीडीसी, सो इसका भी एक फाइनाइट टाइम है बहुत शॉर्ट टाइम। आई एम सेइंग कि एग्जॉस्ट ब्लो डाउन इज टेकिंग प्लेस इन जस्ट इन 15 माइक्रो सेकंड, यानी कि हमारा जो एग्जॉस्ट ब्लो डाउन हो रहा है 50 माइक्रो सेकंड में हो रहा है। तो ये 50 माइक्रो सेकंड एक टाइम ड्यूरेशन तो है, फाइनाइट टाइम तो है, बट इट इज आल्सो वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। यस या नो? यस सर। So combustion and exhaust blowdown have the finite length of time, but that is a very short duration of time. बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर अभी। ये बारीक चीजें हैं, ये बारीक चीजें, इनको याद रखो कि हमारा कंबशन जो होता है वो एक फाइनाइट टाइम में होता है, बट वो फाइनाइट टाइम जो बहुत छोटा है, वो फाइनाइट टाइम एक बहुत स्मॉलर सा टाइम ड्यूरेशन है। सिमिलरली हमारा जब एग्जॉस्ट ब्लो डाउन हो रहा है व्हेन आवर पिस्टन इज रीचिंग एट द बीडीसी, वो भी हमारा क्या है, एक फाइनाइट टाइम है,
बट दैट फाइनाइट टाइम हैज वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि 10 सेकंड का, 5 माइक्रो सेकंड का, 10 माइक्रो सेकंड का, मतलब बहुत छोटा टाइम ड्यूरेशन है, बट वो एक प्रोसेस होता है, यानी एक फाइनाइट टाइम है। बात समझ में आई नहीं आई कंबशन और एग्जॉस्ट ब्लो डाउन की सबको? यस सर आ गई। यस सर। ये ना तो फर्स्ट स्ट्रोक में हो रहा, ना सेकंड स्ट्रोक में हो रहा, ना थर्ड स्ट्रोक में हो रहा। ये थर्ड स्ट्रोक के पहले हो रहा हमारा कंबशन और थर्ड स्ट्रोक के बाद हो रहा हमारा एग्जॉस्ट ब्लो डाउन। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये कोई स्ट्रोक में रिलेशन नहीं है इसका कंबशन का और एग्जॉस्ट ब्लो डाउन का स्ट्रोक से कोई रिलेशन नहीं है, ना फर्स्ट स्ट्रोक है, ना सेकंड स्ट्रोक है, ना थर्ड स्ट्रोक है, ना फोर्थ स्ट्रोक है, बट इट इज हैपनिंग बिफोर द, यानी कि कंबशन इज टेकिंग प्लेस जस्ट बिफोर द थर्ड स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट ब्लो डाउन इज जस्ट टेकिंग प्लेस आफ्टर द थर्ड स्ट्रोक। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। अब हमारा फोर्थ स्ट्रोक जब स्टार्ट होगा, फोर्थ स्ट्रोक कब स्टार्ट होगा? व्हेन द पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। सो उस टाइम ड्यूरेशन में हमारा, यानी कि जब हमारा अब इस फोर्थ स्ट्रोक में होगा क्या? सो मैंने बताया कि एग्जॉस्ट ब्लो डाउन में क्या होता है कि जो उसके अंदर एक्सिस, यानी कि जो हाई प्रेशर की गैसेस है, जो गैसेस जल चुकी है और हाई प्रेशर पर वो तुम्हारी क्या चली जाती है, बाहर चली जाती है एग्जॉस्ट वाल्व से, बट स्टिल वी हैव ए लॉट ऑफ गैसेस इनसाइड द सिलेंडर। कुछ हमारे पास वो भी गैसेस अभी हमारे बची हुई जिनका प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या उससे कम है। हमारे पास वो गैसेस अभी सिलेंडर के अंदर बाकी हैं जिनका प्रेशर क्या है तुम्हारा, या तो एटमॉस्फेरिक है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। वो गैसेस अभी हमारी एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर नहीं निकली हैं। वो कब निकलेंगी बाहर? जब हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ को मूव करेगा। तो जब पिस्टन पीडीसी से टीडीसी की तरफ को मूव करेगा तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा, सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम कम होगा। सो वॉल्यूम कम होने से प्रेशर इंक्रीज करेगा नहीं करेगा इनसाइड द सिलेंडर? ये सुनो बताइए। यस सर। यस सर। सो प्रेशर इंक्रीज करने से उसके अंदर जो बर्न गैसेस हैं वो सारी की सारी बाहर भागेंगी नहीं भागेंगी एग्जॉस्ट वाल्व से? ये सुनो बताइए। यस सर, भागेंगी। अब हमारा पिस्टन क्या है, टीडीसी पे पहुंचने ही वाला है। पिस्टन हमारा टीडीसी पे पहुंचने ही वाला है। एग्जॉस्ट वाल्व अभी बंद नहीं होता है। जब हमारा पिस्टन टीडीसी में ही पहुंच जाता है, हमारा क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद नहीं होता है, बट जैसे ही पिस्टन टीडीसी पे पहुंचने वाला होता है हमारा इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। हमारा एग्जॉस्ट वाल्व अभी हमारा बंद नहीं हुआ है, पिस्टन हमारा टीडीसी पे पहुंच गया है, उससे पहले ही हमारा क्या हो गया है, इनलेट वाल्व हमारा क्या हो जाता है भाई, ओपन हो जाता है। ओपन हो जाता है। सो एग्जॉस्ट वाल्व हमारा बंद नहीं हुआ है और इनलेट वाल्व हमारा ओपन हो गया है। सो दिस कंडीशन इज नोन एज द ओवरलैपिंग ऑफ द वाल्व। इसको कहते हैं हम ओवरलैपिंग ऑफ द वाल्व। यानी कि आफ्टर द फोर्थ स्ट्रोक, यानी कि फोर्थ स्ट्रोक जैसे ही कंप्लीट होता है तो जैसे ही यानी कि पिस्टन हमारा टीडीसी पहुंचता है, एग्जॉस्ट वाल्व अभी बंद होने में कुछ टाइम ड्यूरेशन बाकी है। एग्जॉस्ट वाल्व हमारा बंद नहीं होता है, उससे ही पहले हमारा क्या हो जाता है, इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। इसका मतलब एक टाइम में दोनों वाल्व हमारे ओपन है, इनलेट वाल्व भी ओपन हो गया और एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन है। इसको कहते हैं हम वाल्व ओवरलैपिंग टाइमिंग। क्या होता है अभी तुम्हारा ये वाल्व, यानी कि दोनों वाल्व हमारे एग्जॉस्ट और इनलेट दोनों वाल्व हमारे क्या है, ओपन है। तो ये बहुत छोटा सा टाइम होता है। जैसे हमारा पिस्टन टीडीसी पर पहुंचता है, टीडीसी से पहुंचने नीचे मूव करता है, एग्जॉस्ट वाल्व हमारा बंद हो जाता है और इनलेट वाल्व हमारा खुला रहता है जब तक वो पिस्टन बीडीसी पे नहीं पहुंच जाएगा। वो तो हम लोगों को सबको पता ही है पहले स्ट्रोक में क्या होता है। तो एक थोड़े से ड्यूरेशन के लिए दोनों वाल्व एक साथ ओपन रहते हैं। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इसको क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ द वाल्व। ओवरलैपिंग। तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ओवरलैपिंग ऑफ द वाल्व क्या होती है। सो फर्स्ट स्ट्रोक सबको समझ में आ गया कि ड्यूरिंग द फर्स्ट स्ट्रोक अवर पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी और क्रैंक हमारा 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा। ये से नो बताइए। यस सर। सेकंड स्ट्रोक में हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा। अगेन हमारा जो हमारा क्रैंक है वो तुम्हारा 180 से 360 मूव कर जाएगा। तो हमारा पूरा एक चक्कर हो जाएगा क्रैंक का, यानी दो स्ट्रोक में हमारा क्रैंक पूरा एक राउंड कर गया सर्किल के अराउंड, यानी इस सर्किल पे एक राउंड पूरा घूम लिया इसने। ये सुनो, सबको समझ में आ रही है? तो हमारा क्रैंक शाफ्ट का कितने रोटेशन हो गए दो स्ट्रोक में? एक स्ट्रोक, वन फुल रोटेशन। हाँ, वन फुल रोटेशन हो गया। उसके बाद जब थर्ड स्ट्रोक होगा तो थर्ड स्ट्रोक में अगेन हमारा क्रैंक जो है 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। उसके बाद जब हमारा फोर्थ स्ट्रोक होगा तो 180 से 360 रोटेट हो जाएगा हमारा क्रैंक। तो हमारे क्या, उसमें भी हमारा ये पूरा क्या तुम्हारा क्या होगा, क्रैंक शाफ्ट एक चक्कर और पूरा मूव कर जाएगा। तो 4 स्ट्रोक में हमारा क्रैंक शाफ्ट कितने चक्कर मूव कर रहा है? 2 रोटेशन। यानी क्रैंक के भी 2 रोटेशन हो गए और क्रैंक शाफ्ट के भी 2 रोटेशन हो गए। सो एंड वी आर गेटिंग द पावर ओनली इन 1 स्ट्रोक, यानी कि हमारा थर्ड स्ट्रोक में पावर मिलती है।
क्रैंक हमारा 2 रोटेशन मूव कर गया, बट वी आर गेटिंग द पावर इन ओनली इन 1 स्ट्रोक। यस या नो? Yes. Yes, sir. सो ये तुम्हारा दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ द 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, एनीवन हैव एनी टाइप ऑफ डाउट रिलेटिंग द वर्किंग ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजन? बाकी कंस्ट्रक्शन वाइज सब चीज़ सेम होती है। डिफरेंस क्या होता है, इन केस ऑफ द डीजल इंजन वी हैव द स्पार्क प्लग की जगह हमारा क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर होता है। एंड ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक ओनली एयर कम इनसाइड द सिलेंडर एंड कंप्रेशन ऑफ द एयर विल टेक प्लेस ओनली। एयर का ही कंप्रेशन होता है उससे पहले। वो डीजल विल एंटर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, यानी कि जब हमारा कंबशन होगा तब हमारा जो है डीजल क्या करेगा, एंटर करेगा एट द एंड ऑफ द सेकंड स्ट्रोक। सो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? नहीं आया? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नो सर। कंबशन समझ में आ गया, एग्जॉस्ट ब्लो डाउन समझ में आ गया, एग्जॉस्ट का क्या रिक्वायरमेंट है वो भी समझ में आ गया, सक्शन और कंप्रेशन सब समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ द 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। आई होप के सबको ये क्लियर हो गया होगा, तुम लोगों को और भी पढ़ाया गया होगा इससे रिलेटेड चीजें। सो सबको क्लियर है नहीं है? यस सर, क्लियर है। यस सर।